So, today we are just going to begin actually from the very initial, what is sociology? What is sociology, right? So, I think everyone knows what is sociology. So, just tell me what is sociology, if you know something about sociology, any word, any points. Thinking new or thinking different. Thinking different, that is sociology. Thinking different. You tell me. Everything around us which we are experiencing, all the things are coming under sociology. देखिए sociology in simple word we can say that just about scientific study about society, that is a sociology. That is a very layman definition what is sociology actually, right. Firstly, break this word into two parts. One is socio, right. Socio means, what is mean by socio? Society. And logi means the way you study, the way you study, the way you, or we can say that the way we study, that is a method, that is a method by applying scientific method, we can say that scientific method. So, basically in a definition we can say that sociology is nothing but scientific study about society, logi means basically a science, 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 how we study something, that is a logi. Sociology is nothing but scientific study, scientific study about society, right. Scientific study about society, that everyone knows the definition what is sociology. Now, make it more organized, right, more organized form of definition. Actually, what is sociology? In other word we can say sociology is basically a scientific study, scientific study about what? Society. Scientific study about society. In sociology we study about society, then social group also, social group and human behavior, that is little bit organized kind of definition, right, that everyone knows that is the scientific study about society, that is a sociology. But in other word we can say sociology is a scientific study about what? That is itself a society, itself about society, then social groups, any of groups constitute a society also, social institution also, we can put other term like social institution also, social institution, human behavior, and these things we study basically under the sociology. So, that is a sociology. Now, we will see some of the term which come under the definition of sociology itself. Actually, what is this term? ये लिख लीजिएगा आप लोग, चूँकि हम पूछेंगे, हम तो मिटा देंगे, पता नहीं चलेगा कौन कौन सा टर्म था. ठीक है. Now, one term
which has come under the definition, that is a society, है ना, society. In sociology we study scientifically about the society. So what is society? Until or unless if we do not know what is society, then how we can approach the sociology, right? So anyone, any idea about society? What is society itself? Sahil? Anything, just tell me. Sir, it is a group of social organisms. Group of, आप बताइए कुछ. The group which live together. Group which live, any idea? No. देखिए, society, that is right, that is right. A group which live together, like you said, it is a basically a wave of relationship, right? Wave या chain of social relationship, social relationship, that is a society. Society constitute, है ना, a wave of relationship among the members, है ना, individual members, a wave of a relationship, a chain of relationship, basically social relationship among the members. Then we can say that that is a society, that is a society, right? So society is nothing but a wave of a chain of relationship among the individual members. Then we can say that that is a society. Now एक term आया था definition में, that is science. Actually what is science? Science. Sociology is basically a science of society. Sociology is a science of society. I think everyone have read the science. What is science? पढ़े है ना, 11th 12th में साइंस तो पढ़े ही होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे. साइंस क्या है? कुछ भी बोल दीजिए, साइंस हो जाएगा. Anything is obtained from experiment. Obtained from the experiment, that is science. Huh? Practical observation. These are the method of science. आप बताइए, आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है नहीं? Scientific study. Basically science is nothing but a way of method. It is a way. Science is basically a way, or we can say that method, METHOD, method. Science is basically a way or method to study any social phenomena, right? Science is a way or method to study any social phenomena, yeah, any natural phenomena, we can say any phenomena. Science is nothing but a way or method. जो आप लोग मैंने बोले हैं ना, experimentation, empirical observation, these are the method. And by applying these method, we can study any phenomena. Then we can say that that phenomena we study scientifically, and that is the science. Science is basically a way or method or technique to study any phenomena, natural phenomena, social phenomena, any phenomena. Just we study about the nature by applying some of the method and technique. That is a science. That is a science. अब ये way और technique क्या हो सकता है? What could be the possible way and technique for the study of science, which we call scientific method? Science is nothing but by applying a scientific method, we study any phenomena, natural phenomena, that we call as science. So what could be the possible method? Possible method. Observation, Of course, observation is one of the part. Observation, experimentation. Right. Basically we observe what? Empirically observe, right? Empirically observe. Then what could be the other method?
generalization also we do in terms of making a theory, but tell me precise method. Sometime we compare also, comparison, prediction. Comparison, prediction, then generalization one of said. It means we can say that by applying scientific method, technique, we study any phenomena, that is a science, that is a science. यहाँ तक क्लियर है ना? जस्ट बेसिक से एकदम चल रहे हैं, एकदम बेसिक से, राइट. अच्छा ये बताइए, नाउ वी नो द सोसाइटी, एक्चुअली व्हाट इज सोसाइटी, राइट, एंड इवन वी नो दैट ह्यूमन बीइंग कंस्टिट्यूट अ सोसाइटी. Human being constitute a society because human being has a web of relationship, a chain of relationship. That's why we constitute a society. But tell me one question: does animal world or animals have society? Can we say that animals also have society? हाँ, हाँ बताइए, can we say that animal world or animals have society? Can we say that कि इसके पास सोसाइटी होता है? आपने बोला यस, साहिल यस, आप बताइए आप लोग. हाँ, नॉट एबल टू से. वेरी गुड. देर इज अ नो नॉर्म्स. चलिए एक बोलें आप, एक क्रूशियल वर्ड है नो नॉर्म्स. सोसाइटी है बट विदाउट नॉर्म सोसाइटी है, यही कहना मतलब है ना? आप बताइए. एग्री विथ हिम. आप एकदम कंफर्ट होकर के पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए एकदम जनरल, बताइए. जस्ट ये बताइए कि एनिमल्स के पास सोसाइटी होता है या नहीं होता है? नहीं होता है. नो. क्यों? कुछ तो बताइए. जैसे रीज़न तो हो सकता है ना, पॉसिबल रीज़न. सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, यही ना? चलिए, नो सोशल रिलेशनशिप, आपके कहने का मतलब है नो सोशल. देखिए, एनिमल्स टू हैव सोसाइटी. एनिमल्स हैव सोसाइटी. Of course, we should be agree. Like just see the example, elephant. Elephant जो रहते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, और एनिमल वर्ल्ड में माना जाता है एलिफेंट जो है सबसे सोशलाइज एनिमल भी है. वो फैमिली से बाहर रह नहीं सकता. मंकी देखिएगा बंच में रहता है, वो अकेले घूमता नहीं है, बंच में रहता है. देन एंट्स देखिए, जो चींटी जो चलती है, लाइन में चलती है ना, वो भी अपना ग्रुप में चलता है, अपना बंच में चलता है. They have the society, but the something that is missing from the human being, that our society, that is the culture, norms, values, है ना? No norms, values, culture, everything. CUL, culture. So basic differences we can say that the human society or human world and the animal world is that their society is basically based on the biological. Their society is based on biology, and जो हम लोगों का सोसाइटी है that is a human world. Our society is based on culture, and that is missing in animal world. That make
distinction between animal to human, right? Human being has a sense of rightness and wrongness, but animal do not know what is right and what is wrong, right? And what is right and what is wrong, which is guided by the culture, norms, values, जो आप बताएं, right? So that is a basic picture of society. Actually, what is society? मिटा दें? चलिए टर्म डिस्कस करते हैं जो आया था, डेट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. आई थिंक सोशल इंस्टीट्यूशन. व्हाट इज मीन बाय सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन, एनी आइडिया? सोशल इंस्टीट्यूशन. Institution basically in society we found sometime which is persistence and continuous, जो लगातार चलते आ रहा है, and which is in structurized form. 3 वर्ड जो है याद रखिएगा, persistence या continuous, and which is in structurized form. structurized which is structurally, which is in structurized form. It means which is organized. It means वो organized है ना, organized or in arranged form. Arranged form. Then we can say that that is a institution. That is a institution, right? That is a institution. Then why we call social institution? इंस्टीट्यूशन तो हो गया कि जो भी चीज़ जो सस्टेन कर रहा है सोसाइटी में, परसिस्टेंट है, जो लगातार अभी तक सस्टेन किए हुए हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इन स्ट्रक्चराइज फॉर्म, जो ऑर्गेनाइज्ड हुई है, तो इंस्टीट्यूशन हो गया. देन व्हाई वी कॉल सोशल इंस्टीट्यूशन? फॉर इंटरेक्शन. इट मीन्स आवर इंटरेक्शन विद दैट इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल इंटरेक्शन है उसमें. इवन इंस्टीट्यूशन का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है ऑन द इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल ऑल्सो इंटरेक्टिंग, एसोसिएटिंग विद दैट इंस्टीट्यूशन. दैट्स व्हाई वी कॉल द सोशल. सोशल मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. मैरिज ही आपको नज़र आया, ठीक है, मैरिज. मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन. मैरिज पहले भी था, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एंसेंट टाइम में होता था ना मैरिज, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ा, तभी तो हम लोग आए. पहले भी था, है ना, मैरिज पहले भी था. एंड मोर और लेस अब प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है. अगर मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन सोचते हैं, है ना, अगर फैमिली बोलते हैं कि फैमिली, ठीक है, तब हम सोच सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्स्टेंट करेंगे. लेकिन मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन वी हैव टू डिस्कस, ठीक है. तो जस्ट इट्स ऑल्सो अ कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंस. पहले भी था, अर्ली सोसाइटी में भी था, ऑल्दो थोड़ा सा फॉर्म इसका अलग था मैरिज का, अभी थोड़ा अलग हो गया है. अब ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से शादी वादी करते थे, अब लव मैरिज का भी ट्रेंड आ गया है ना. पहले होता था जो अरेंज मैरिज, काइंड ऑफ मैरिज, ये सब ट्रेंड था. लेकिन मैरिज अभी भी है, ऐसा नहीं कि मैरिज खत्म हो गया. मैरिज इज स्टिल एग्जिस्ट टुडे. इट्स परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो, अरेंज फॉर्म ऑल्सो. मैरिज जब होता है तो उसमें देखते हैं ना, सारे कुछ देखते हैं, इसमें गोत्र देखते हैं, चेक करते हैं, कास्ट देखते हैं. इवन अभी लव मैरिज है ना, लव मैरिज भी होता है. तो मैरिज in the sense of we say the organized, so what could be the possible structured part in marriage, है ना, कि हस्बैंड वाइफ मिल के रहते हैं ना. ऐसा नहीं कि एक दूसरे को रिपल्स करते रहते हैं, रिफ्यूट करते रहते हैं, हर बात को कंसेशंस कहीं ना कहीं बनता है ना. तो दैट इज आवर ऑर्गेनाइज्ड पार्ट और स्ट्रक्चर्ड पार्ट, है ना. इसलिए मैरिज जो है सस्टेन करता है, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा, सस्टेन ही नहीं करेगा मैरिज, ठीक है. Although there is a broad 5 social institution, ठीक है, a broad 5 social institution. जैसे one is religion.
we can say that that is a types of social institution also, that is one of the religion, family, family के अंदर ही आ गया मैरिज आपका जो सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, फैमिली, देन इकोनॉमी, पॉलिटी and education, these are the basic 5 social institution, है ना, these are the basic, we can say that 5 aspect या types of a social institution. Now see one by one why we call religion as a social institution. At earliest stage of society there was a religious ethics, है ना, religious value, religious norms, people were guided by religious ethics, religious values, religious norms in earliest society, and it still exists today also, religion अभी भी है ना, तो that is a persistence and continuous, it is in organized and arranged form also, religion become more organized with development in a rational thought of the individuals, ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि religion as a social institution. In same way family also you can apply, economy, polity and education, that also exists today. Education was at earliest stage of society also, पहले था ना एजुकेशन, जैसे कुछ सीरियल वगैरह देखते होइएगा टीवी वगैरह पे, है ना, जैसे महाभारत या रामायण पीरियड का, उस समय जो ऋषि मुनि जो होते थे ज्ञान देते थे, वो एक ही ऋषि मुनि सारे फिलोसफिकल काइंड ऑफ नॉलेज दे देते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, स्टूडेंट भी बैठे रहते थे बाल मुंडी करके, और सारे के सारे ज्ञान दे देते थे, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट. तो एजुकेशन वाज ऑल्सो एट पास्ट टाइम एंड इट also exist in present also, which is in more structurized and organized form. जैसे मॉडर्न एजुकेशन देख लीजिए, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, जैसे ईच सेक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, आर्ट्स का अलग डिपार्टमेंट है, बॉटनी का अलग है, फिशरी का अलग है, लेकिन पहले होता था कि गुरुजी एक ही साथ सब दे देते थे नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज होता था. बट द एजुकेशन एज ए सिस्टम इट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, पहले भी था अभी भी है, दैट्स वाई वी कॉल दैट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. उसी तरीके से फैमिली हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट टुडे, दैट वी कैन से दैट दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशन. फर्दर इसके सब टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, जैसे रिलीजन में भी डिफरेंट कल्ट, सेक्ट हो गया ना, दीज आर द वी कैन से दैट सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन. फैमिली में मैनी पार्ट्स, फैमिली में ऑल्सो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, द एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली जैसे मैरिज, है ना, दीज आर द सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन. ऐसे ही जान लीजिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे इकोनॉमी में भी व्हाट वी कैन क्या बोल सकते हैं, द पॉसिबल सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमी, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, हाँ बैंकिंग हो गया, स्टॉक जो जॉइंट स्टॉक वगैरह हो गया, शेयर मार्केट हो गया, दीज आर द सेकेंडरी, है ना, जैसे बैंकिंग, शेयर मार्केट, ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी, जो अभी करंट जो कंटेम्प्रेरी में इमर्ज कर रहा है, दैट वी कैन से दैट दीज आर द सेकेंडरी, ठीक है. उसी तरह पॉलिटी में, पॉलिटी का जो इंस्टीट्यूशन जैसे पंचायत हो गया, पंचायत लेवल पे म्यूनसिपालिटी वगैरह हो गया, डेमोक्रेसी वन ऑफ द एस्पेक्ट, पार्लियामेंट्री, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये सब. उसी तरह एजुकेशन में अगेन प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी वी कैन से दैट सेकेंडरी एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन, ठीक है. दीज आर नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स बट रेदर वी शुड नो, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन. तो ये है बेसिकली, बेटा दे देखिए, ये सब हमारे सिलेबस, एक्चुअली जो ऑप्शनल सिलेबस है उसमें ये सब डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, बट वी नीड बेसिक पिक्चर, है ना, उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए. अच्छा, एक वर्ड आया इसमें स्ट्रक्चर, व्हाट इज मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर, बताइए अक्षय.
सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर आपको बताए थे, सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड which is arranged, that's why we call structure. So by definition we can say that anything which is organized, structured, which is established, ESTAB, established and pattern in society, then we can say that that is a social institution, social structure, that is a social structure. Anything which is established and pattern, we can say that that is a social structure. Again the term here is social. Now हम बता चुके हैं आप लोगों को social क्यों बोलते हैं. Now you tell me, you teach me what is mean by social. बताइए तो. बेसिक टर्म जानना जरूरी है, ये सब हेल्प करेंगे जो आगे हम लोग थिंकर्स पढ़ेंगे, है ना, जो बेसिक वर्ड जो आएगा, ऑल्दो वहाँ भी रिपीट होगा, सारे कुछ हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाने जा रहा है. आप बताइए सोशल क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए थे. साहिल, एनी आइडिया? अमॉन्ग द ग्रुप, जैसे एक इसको ऐसे समझिए, दिस इज योर सोसाइटी, एक डायग्राम के द्वारा समझ लीजिए इसको. दिस इज अ सोसाइटी, ठीक है. एंड सोसाइटी व्हाट एवर वी आर विटनेसिंग एक्सेप्ट नेचुरल थिंग, रिवर, एयर, ठीक है, माउंटेन, सारे की सारी चीज़ को छोड़ देना है, सारे एस्पेक्ट को छोड़ देना है, एक्सेप्ट नेचुरल थिंग, जो भी आर्टिफिशियली व्हाट एवर वी आर विटनेसिंग आइदर इन मटेरियल फॉर्म और नॉन मटेरियल फॉर्म. ये वर्ड आ गया तो अगेन हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. मटेरियल एंड एक हो गया नॉन मटेरियल फॉर्म. नॉन मटेरियल फॉर्म, मटेरियल बेसिकली विच इज़ मेड बाय मैटर, है ना, जैसे ये पोडियम हो गया, ये पेन हो गया, इट्सेल्फ बोर्ड हो गया, जो मैटर से बना हुआ है, दैट इज मटेरियल. चेयर हो गया, वॉल हो गया, दीवार हो गया, फैन हो गया, एनीथिंग विच इज मेड बाय मैटर, दोज आर द मटेरियल थिंग. एंड नॉन मटेरियल थिंग विच इज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जैसे दैट इज ऑल्सो मेड बाय ह्यूमन, जैसे वैल्यू, नॉर्म्स, जैसे बड़े को पैर छूना है, इट इज़ मेड बाय अस, ये कोई दूसरा नहीं बनाया, इट इज़ मेड बाय अस, हम लोग बनाए हैं. गुरु को रिस्पेक्ट देना है, दैट इज़ मेड बाय अस ऑल्सो. कल्चर, जितने भी कल्चर हो गए, पार्ट हो गए, रिलीजियस एथिक्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, सारे के सारे हम लोगों के द्वारा बनाए गए, ह्यूमन बीइंग के द्वारा. तो व्हाट एवर एनी थिंग्स वी आर जस्ट विटनेसिंग इन सोसाइटी, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग. एंड व्हाई इट ऑल दीज थिंग्स वी आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, क्यों बनाया गया ह्यूमन बीइंग के द्वारा? फॉर मेकिंग देयर ओन लाइफ ईजियर, better life, for betterment of life, easier life, lifestyle, easier lifestyle, इसलिए हम लोग बनाए हैं. जितने भी चीज़ हम लोग विटनेस हो रहे हैं, एंड ऑल द एस्पेक्ट आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शनल पर्सपेक्टिव में, ठीक है. तो बेसिकली सोशल मीन्स any things which is made by human being, है ना, human being, and their individual relation with that, and also individual relation with other humans also, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल है ना, सारे among the individual member relation होना चाहिए, interaction is necessary, and the aspect that is made by human being, there should be also interaction, यहाँ भी interaction होना चाहिए, right.
So human is basically the center of the society. Human is basically the center of the society. That's why we call that is a social. Social मतलब जो human being के द्वारा बनाया गया हो, and there is a interaction. Interaction is a necessary. That's why we call social. Even interaction between individual and individual, direct or direct interaction with social institution or the other aspect of the society, है ना, जितने भी एस्पेक्ट हो गए सोसाइटी में, नॉर्म्स, वैल्यू, मटेरियल, नॉन मटेरियल, कल्चरल, नॉन कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, सारे के सारे कंटेंट करते हैं सोसाइटी. दैट्स व्हाई वी कॉल सोशल. तो बताइए कुछ एग्जांपल दीजिए सोशल स्ट्रक्चर का. ठीक है, PATTERNED, एनीथिंग विच इज पैटर्न एंड एस्टेब्लिश, दैट इज अ स्ट्रक्चर. जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे अर्बन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जस्ट कंपेयर टू रूरल. जैसे रूरल जो विलेज सोसाइटी हो गया, कैसा रहता है विलेज सोसाइटी, बताइए. सभी लोग ऑलमोस्ट विलेज से बिलोंग करते हैं. अनप्लान्ड रहता है, कोई प्लानिंग नहीं रहता है ना. बट अर्बन के बारे में देखिए, जैसे ही अर्बन के बारे में देखते हैं तो अर्बन सोसाइटी इज अ प्लान्ड सोसाइटी, वेल ऑर्गेनाइज होता है ना. उसमें सीवेज सिस्टम होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, हेल्थ का अपना स्ट्रक्चर रहता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर चैलेंज क्रिएट हो जाए, कोरोना जैसा कोई ऐसा अगेन पेंडेमिक आ जाए, तो अर्बन सोसाइटी उसको सस्टेन कर सकता है. लेकिन विलेज में तो वैसा हेल्थ का सिस्टम ही नहीं बना है, तो सारे लोग मर जाएंगे. ठीक है, तो जैसे अर्बन बोल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए. अर्बन सोसाइटी, urban society is well structurized society, that is urbanization. urbanization which is in structurized form. ठीक है, तो ये बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर. समझ गए सोशल स्ट्रक्चर क्या है. और कोई टर्म था क्या डिफिनेशन में आया था सोशियोलॉजी के? सोशियोलॉजी टफ नहीं है, टफ बना देते हैं आप लोग, राइट अप्रोच नहीं लगाकर. ठीक है, सोशल बिहेवियर बेसिकली वी कैन से दैट जो इंटरेक्ट करते हैं, द वे वी इंटरेक्ट, दैट इज अ बिहेवियर. इट्स नॉट अ बिग थिंग. द वे वी इंटरेक्ट, डिस्कस, दैट इज अ बिहेवियर. ह्यूमन समटाइम इंटरेक्ट विथ इंडिविजुअल इटसेल्फ, समटाइम विथ सोशल इंस्टीट्यूशन. जैसे आप एजुकेशन में कहीं जाते हैं पढ़ने ना, एजुकेशन इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, नाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, है ना, कि नहीं हमको साइंस डिपार्टमेंट में जाना है, आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है, इंजीनियरिंग करना है. दैट इज इंटरेक्शन होना चाहिए इसमें. ठीक, सोशल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर. देखिए ग्रुप के बारे में जान लीजिए. ग्रुप इम्पोर्टेंट है. ग्रुप के बहुत सारे डिफिनीशन है. प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, जैसे C.H. कूले बोले हैं, चार्ल्स हटन कूले, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं. प्राइमरी ग्रुप इज बेसिकली स्मॉल ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप लार्जर ग्रुप जो फॉर्म होता है, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप. बट मोर रेशनल फॉर्म वी कैन से दैट फर्डिनांड टोनी का डिफिनीशन. फर्डिनांड टोनी basically Ferdinand Tony, he said there is a two types of group in society. According to Tony, two types of group. एक बोलते हैं Gesellschaft and Gemeinschaft. एंड दूसरा Gesellschaft. Gemeinschaft and Gesellschaft of group. There are two types of group, and Gemeinschaft of group basically based on the rational will, not rational. We can say that voluntarily. Voluntarily will, and such kind of
relationship established among the individual, that we can say that constitute a Gymni-Shaft group. जैसे एग्जाम्पल दीजिए ना, वॉलंटरली रिलेशनशिप, मदर सन रिलेशनशिप, जो फैमिली का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज अ वॉलंटरली रिलेशनशिप, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल एक ले लीजिए, मदर एंड सन रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड सन। यहाँ दो मेंबर के बीच एक ग्रुप क्रिएट हुआ ना। अच्छा बताइए, ग्रुप बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये जानते हैं? कैन वी say that one single person constitute a group? If two single person is there and there is a no interaction, can we say that that makes a group? So group बनने के लिए interaction चाहिए ही चाहिए। अगर दो members हैं, अगर दोनों के बीच interaction नहीं है, then we can say that is not a group. ग्रुप होने के लिए इंटरेक्शन इज नेसेसरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गेस्चर के द्वारा, वोकली बोल करके जो इंटरेक्शन करते हैं, तो इंटरेक्शन इज नेसेसरी। तो बेसिकली Gymni-Shaft ग्रुप इज बेसिकली अ रिलेशनशिप, अ ग्रुप विच इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरली वॉलंटरली रिलेशनशिप, उस ग्रुप को बोलते हैं जैसे Gymni-Shaft, जैसे फैमिली का हो गया। Gesell-Shaft बेसिकली रेशनल विल, है ना। रेशनल बेसिस पे जो ग्रुप कंस्टिट्यूट होता है, रेशनल बेसिस पे जो फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं Gesell-Shaft ग्रुप, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बोलिए तो, रेशनल बेसिस पे, जैसे क्लासरूम। हाँ, क्लासरूम में आप लोग आए, क्यों आए? बिकॉज यू थिंक रेशनली कि नहीं, हम जाकर देखते हैं अच्छा है या कैसा है, कैसा नहीं है, यू थिंक रेशनली। And when you enter here, you also interact with the other members also, other student community, even Guruji also, you interact with Guruji, and in this term you develop a relationship, a group, and that is based on your rational thought, जैसे classroom का हो गया। दैट इज बेसिकली अ Gesell-Shaft ग्रुप। तो बेसिकली याद रखिएगा दो टर्म, वॉलंटरली एंड नॉन वॉलंटरली। नॉन वॉलंटरली हो गया रेशनल, ठीक है। तो एक ग्रुप है, एक क्वेश्चन रखिएगा, व्हाट इज ग्रुप। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो टर्म्स आते रहेंगे बेसिकली वन बाय वन हम डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में है, ऑप्शनल में, वो आते रहेंगे, डिफाइन करते चलेंगे वन बाय वन। देखिए, वी डिस्कस ओनली द डिफिनीशन ऑफ सोशियोलॉजी, एक्चुअली व्हाट इज सोशियोलॉजी। सो वी डिस्कस सोशियोलॉजी इज नथिंग बट ए साइंटिफिक स्टडी अबाउट सोसाइटी। इन अदर वर्ड वी कैन से सोशियोलॉजी इज ए स्टडी अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इटसेल्फ, दैट इज अ सोशियोलॉजी। नाउ आप सिलेबस पे आइए, अपना फर्स्ट टॉपिक बताइए सिलेबस में। याद है? भूल गए? टॉपिक तो याद होना चाहिए ना। फर्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। इसमें जो पहला टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना है अभी, दैट इज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेज। सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। And emergence of sociology, and this one the topic we are going to discuss in very broad way, right? First topic,
that is modernity and social changes and in Europe and emergence of sociology. Firstly, we will define the term what is modernity, we will discuss modernity, then we will discuss the changes due to the modernity, right. Changes due to the modernity, particularly in European society we have to discuss, and then after we will come how the sociology emerged, how the sociology emerged, and that is the discipline itself जो टॉपिक में दिया है that is the discipline. Discipline means subject, how the sociology form as a discipline, as a subject that we have to discuss. So everything we are going to discuss in this topic, actually what is modernity, and due to the modernity what kind of social changes took place in European society, and due to the changes the problems create, that point of time in European society, the earliest thinkers, the philosopher, the forefathers of sociology itself start studying these changes and problems, and in terms of that sociology as a discipline, as a subject emerged, that we will discuss in detail. This was the basic summary, we can say that. So today we are going to discuss, basically define the term modernity. Modernity. Now everyone aware, everyone lives in modern society, and everyone more or less knows about the term modernity, what is modernity. So I also assume from my side कि कुछ न कुछ आप लोग बोलेंगे, मॉडर्निटी है क्या, कुछ भी हो सकता है, सभी लोग फील करते हैं इसको, देखते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड भी यूज करते हैं, मॉडर्निटी, मॉडर्न ज़माना आ गया, ये है वो है, तो एक्चुअली क्या है मॉडर्निटी? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, चलिए। VISIAVLE विजिबल चेंजेस, और बताइए। थिंकिंग डिफरेंट, थिंकिंग डिफरेंट, अपोजिशन टू ट्रेडिशन। आप साहिल पार्टिसिपेटरी बनना है, शांत नहीं रहना है, ठीक है, जो है पूरा डाल देना है एकदम। वाह, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रेरियन टू कैपिटलिस्ट, industrialist society, that is a very broad term. Transformation or transition from the agrarian society to capitalist industrialist society. और बताइए, और कुछ मॉडर्निटी के टर्म में आ रहा है? हाँ, कंपेयर टू प्रोसेस, कंपेयर टू प्रोसेस, वो कंपेयर किस चीज़ से करेंगे? हाँ, कंपेयर टू ट्रेडिशनल थिंग्स, दैट इज अपोजिशन टू ट्रेडिशन, तो आप बोल ही दिए। सो दीज आर द मॉडर्निटी। देखिए आप लोग सब बताएं, सब राइट है, दैट इज अ मॉडर्निटी, बट इसके बेसिक क्रक्स को समझेंगे। टर्म जो है मॉडर्निटी, इसके बेसिक टर्म, इसके क्रक्स को समझेंगे, ठीक है। एक्चुअली है क्या मॉडर्निटी? सारे के सारे टर्म सही है, सारे के सारे टर्म जो आप लोग बताएं, दैट इज अ राइट। तो बेसिकली आवर मेन मोटो इज टू डिफाइन द टर्म, द क्रक्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी है क्या, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड इसका चलते हैं। बेसिकली मॉडर्निटी डिफाइन फ्रॉम द लैटिन वर्ड इटसेल्फ मोडो, एवरीवन जानते होइएगा, मोडो है ना, लैटिन वर्ड है, और मोडो का मतलब होता है न्यू। हाँ, न्यू, न्यू या करेंट। इट मीन्स वी कैन से दैट एनीथिंग विच इज न्यू, anything which is new, that is modernity, ठीक है।
Modo, modernity came from Latin word which is modo, and which means new or current. In other word we can say that anything which is new, that is modernity. ठीक है, तो जैसे सिंपल इसका डिफिनीशन हो गया मॉडर्निटी का, मॉडर्निटी एनीथिंग विच इज़ न्यू, दैट इज अ मॉडर्निटी. लेकिन इसके अदर फैक्टर पे बात करते हैं, बेसिक क्रक्स ऑफ मॉडर्निटी. वन वी डिस्कस एनीथिंग विच इज न्यू, एनीथिंग विच इज न्यू, that is modernity. Now other factor that brings modernity, that is the changes part. What the change, ये हमारा कीवर्ड हो गया चेंज, है ना. ड्यू टू द चेंजेस, चेंज आता है ना. चेंज कुड बी इन एनी फॉर्म, पास्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी टू करेंट सोसाइटी, चेंजेज इन नॉर्म्स, वैल्यूज, चेंजेज इन थिंकिंग. व्हाट वी कैन से, दूसरा क्या बोल सकते हैं इसमें बताइए. चेंजेज इन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, चेंजेज इन ट्रेडिशन इटसेल्फ, that things we can say that also brings modernity. तो बेसिकली चेंजेज इज वन ऑफ द की वर्ड. जैसे आपने बताया डिफिनीशन, मॉडर्निटी इज नथिंग बट विजिबली चेंजेज इन द सोसाइटी. विजिबली मीन्स व्हाट एवर वी आर विटनेसिंग, जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में जो चेंजेस देख रहे हैं, है ना. मटेरियलिस्टिक फॉर्म, चेंजेज इन मटेरियल, materialistic aspect, changes in materialistic aspect of the society, है ना. Evolution process which itself modernity. Of course, changes in materialistic aspect of the society. Tell me some example of materialistic aspect changes. That is itself a broader term, materialistic aspect. So changes could be many more. Changes could be many more in materialistic aspect. जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी, जैसे बुलकाट रहता था ना, बैल घोड़े इस सब पे वो लकड़ी का पहिया का बना हुआ रहता था, उसमें ऐड करके चलते थे. बट नाउ जैसे न्यू मॉडर्न इंजन आ गया, है ना, मॉडर्न इंजन्स, इंजन्स पर्टिकुलरली जेट इंजन्स, एयर वाला जेट इंजन, जेट इंजन, वाटरवेज के लिए उसका अलग इंजन आ गया, है ना. देन डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंजन, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन, इट मीन्स वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. जो मटेरियलिस्टिक में मॉडिफिकेशन आ रहा है, जो उसमें चेंजेज आ रहा है, जेट इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, है ना. और क्या बोल सकते हैं, गैस पे चलने वाला भी तो इंजन आ गया ना, CNG वगैरह सारे इंजन. तो दैट इज ए मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. अदर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट व्हाट वी कैन से, जैसे आपका बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, अर्लियर फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जैसे उस समय जो घर बनते थे, जो हाउस का जो फॉर्मेशन होता था वो घास फूस का बना होता था. नाउ इट्स टर्न इनटू द ब्रिक मेड, सीमेंटेड स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर. उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ कम्प्लेक्सिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना. बहुत सारे मिक्सचर ऑफ मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, देन वी फॉर्म. तो मटेरियलिस्टिक मतलब एनीथिंग विच इज़ मेड बाय मैटर, anything which is made by matter, एंड जो मैटर में चेंजेज आए, जो करंट सोसाइटी में चेंजेज आ रहा है, देन वी कैन से दैट इज अ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना. तो चेंजेज इन बेसिकली मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. तो ये वर्ड लिखना है, ये की वर्ड हो गया आपका मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है.
तो जैसे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट आएगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैटर से रिलेटेड चेंजेस, ऐसा नहीं कि उस समय कन्फ्यूजन हो। समझ रहे हैं कि नहीं? एक एक एग्जाम्पल बोल दीजिए तो हम समझ जाएंगे। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, एक एक चीज़ सब बाद में बोल दीजिए। पहले स्कूटर आया, बाद में मोपेड आया, फिर बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए। हाँ, दैट इज मॉडर्निटी, चेंजेस है ना, इन फॉर्म ऑफ चेंजेस वी हैव टू से। आप साहिल एक बोल दीजिए मटेरियलिस्टिक फॉर्म में। कम ऑन मैन। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, उसमें चेंजेस, इट कुड बी एनीथिंग। सर मेडिकल फील्ड itself you can, we pump the oxygen from that pump, after that ventilator came, हाँ, दैट इज ऑल्सो चेंजेस, मॉडिफिकेशन किया गया मशीन में। electricity, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे lamp to electric, हाँ, उसका जो मॉडिफिकेशन जो हुआ है ना, पहले एज ए लाइट के फॉर्म पे क्या यूज़ करते थे? लालटेन, केरोसिन से बना हुआ वो यूज किए हैं कि नहीं आप लोग? केरोसिन बंद हो गया। हाँ, केरोसिन से बनता था, शीशा में डाल करके केरोसिन ऑयल, उसमें एक बत्ती लगा करके जलाते थे, डिबिया बोलते थे हम लोग इसका। ठीक है, हम यूज किए हुए हैं उसको। और इसके बाद मॉडिफिकेशन आया है ना, जो साइंस एंड टेक डेवलप हुआ, न्यू इन्वेंशन हुआ टेक्नोलॉजी, है ना, एंड देन इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज़ अ मटेरियलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। देन इलेक्ट्रिसिटी आ गया। आप बताइए। यूज ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ न्यू मटेरियल, जैसे एक बहुत कभी कभी हम देखते हैं, और आप लोग भी देखे होइएगा, जैसे क्लॉथिंग पे कुछ भी फेंक दीजिए लेकिन उस पर दाग नहीं लगेगा, एक न्यू मटेरियल कपड़ा बन रहा है उससे। ठीक, हाँ हाँ, बायोटेक टेक्नोलॉजी जो भी हो, दैट इज ऑल्सो ए चेंजेस, दैट इज ए मॉडर्निटी, दैट इज ए सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, दैट इज ऑल्सो ए चेंजेस, बेसिकली मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। अब बताइए नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट of the society. How we define the non materialistic aspect? Anything which is in not in matter, not in the form of matter, that is a non materialistic thing, which is in cultural form. इसको cultural aspect भी बोल सकते हैं। cultural aspects, cultural aspect of the society. Non materialistic aspect are the cultural aspect of the society. Cultural aspect basically विच इज़ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज। वैल्यू को हम लोग देखते नहीं है ना, रेस्पेक्ट देते हैं उसको, देखते हैं, मतलब देखते हैं कि चलिए आदमी झुक रहा है तो रेस्पेक्ट दे रहा है, दैट इज अ वैल्यू। सो वैल्यू इज ए नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, दैट इज अ कल्चरल एस्पेक्ट। अदर बिलीव्स, BELIE, बिलीव्स, फैथ, वही हो गया। नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, फैथ, है ना, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, फैथ। रिलीजियस एथिक्स, रिलीजियस एथिक्स, जैसे हर रिलीजन का अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स होता है। इस्लाम अलग, हिंदुइज्म का अलग, क्रिश्चियनिटी अलग, बुद्धिज्म अलग, है ना। तो रिलीजियस एथिक्स, उसी को वैल्यूज बोलिए, रिलीजियस वैल्यूज और एथिक्स, वैल्यूज या एथिक्स, ठीक है। अदर, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबल पॉइंट्स? जस्ट पार्टिसिपेट, बोलिए, जो माइंड में आए बोलते जाइए, इसी को तो सोशोलॉजी बोलते हैं। जितना ज़्यादा बोलिएगा उतना ज़्यादा समझिएगा सोशोलॉजी में, और जितना कम बोलिएगा उतना ज़्यादा परेशानी होगी, टर्म निकलेगा ही नहीं लिखने के समय, ठीक है। तो ऑर्डिनरली, है ना, जनरलिटी बन के और पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, फियरलेस हो करके। हाँ, फियर करेज ऑल्सो ए कल्चरल एस्पेक्ट, फियर करेज ऑल्सो ए कल्चरल एस्पेक्ट। So basically we can say that non-materialistic aspect of society which is
a cultural which is not visible, which is in abstract form. They are basically norms, values, religious ethics, beliefs, faith of the society. These are the non materialistic aspect. तो ये समझ गए materialistic and non materialistic aspect. देखिए अदर वे वी कैन से दैट modernity is a term basically related to development, progress, modernity is a term basically related to development, progress and growth. ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी है ना. फर्दर क्या बोले? एनहांसमेंट. दैट इज अ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ है ना. तो बेसिकली इन अदर वर्ड वी कैन से दैट बेसिकली दीज टर्म गिवन बाय स्वीडिश थिंकर्स, गेरेंथ हेरवॉन. इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ही सेड modernity is nothing but a term related to the development, progress and the growth of society, that is the modernity. Modernity is a term basically related to the development, progress and the growth of the society, that is the modernity. And basically term given by Gerenth Herborn, a Swedish thinker. He said modernity is development, progress and growth of the society. क्लियर? अच्छा, एक टर्म यहाँ पे मेरे दिमाग में आ गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली वी डिस्कस द मटेरियलिस्टिक एंड द नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट. कभी कभी एक कहीं टर्म देखिएगा आप, कल्चरल लेग, चूँकि ये रिलेटेड है मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक, हम लोग डिस्कस किए उसी से रिलेटेड है. कल्चरल लैग, व्हाट इज मीन बाय दैट? कल्चरल लैग. कल्चर तो सभी लोग जानते हैं. व्हाट इज द कल्चर? कैन वी डिफाइन कल्चर? कल्चर वी कैन से दैट ऑल लर्नड बिहेवियर, दैट इज ए कल्चर. ऑल learned behavior, all learned behavior, ये क्या हो गया? हाँ, अच्छा, all learned behavior, ठीक है, that is, दिख रहा है ना, all learned behavior, that is a culture, basically a culture. तो culture basically nothing but accumulation of all past knowledge, all जो past tradition है उसी को accumulate कर दिया, that is a culture. And what is mean by lag? नाम से ये भी क्लियर है, lag. कुछ आ रहा है दिमाग में lag? हाँ, क्या? क्लोज, क्लॉस्ट, अच्छा लॉस्ट. आप कुछ लैग. लैग बेसिकली मीन्स गैप, डिफरेंस, कोई दो थिंग के बीच में गैप आ गया. नाउ अब तो क्लियर हो गया होगा. कल्चरल लैग, जो कल्चरल एस्पेक्ट में जो गैप आता है उसको बोलते हैं कल्चरल लैग. तो बेसिकली गैप कौन से कल्चरल एस्पेक्ट में आता है? उसी नॉन मटेरियल और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में. समटाइम वी विटनेस इन सोसाइटी दैट मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट डेवलप सो मच and the cultural aspect, that is the non materialistic aspect, that not developed, and the differences create between both, then we can say that that is a cultural lag. Basically differences or gap between materialistic aspect of society and non materialistic aspect. Non-materialistic aspect of society, that is a cultural aspect.
दैट इज कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। समझ गए? एक्चुअली कल्चरल लेग किसको बोलते हैं? अ डिफरेंस इज अ गैप between the materialistic aspect and the non-materialistic aspect of the society, that is a cultural gap. Sometimes we witness one aspect of the society that develops so much, that is a materialistic aspect, and sometimes we witness that is one aspect is lagging behind, that is cultural aspect. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको डिस्कस कीजिए, क्लियर हो जाएगा. What we can say that example, बताइए पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल एंड नॉन कल्चरल एस्पेक्ट. सो अप्लाई कॉमन सेंस. पाकिस्तान कैसे? Sir, because they are materialistically more developed, like they have AK-47 or other arms and ammunition which are वेरी गुड, वेरी गुड. superior, whereas their norms and their society is But rationally they do not develop. rational. That is a good for understanding. It means you understand the cultural lag, right? बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप पाकिस्तान का एग्जांपल दिए. पाकिस्तान में मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान में जैसे आर्म्स एमुनेशन नए नए है ना इन्वेंशन हो रहे हैं. बोल रहे हैं कि सभी लोगों के पास वहाँ AK-47 है. बट जब रेशनली नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में सोच रहे हैं, जैसे कल्चरल एस्पेक्ट में, कि वहाँ डेवलप नहीं है, रेशनली डेवलप नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो टेरर एक्टिविटी है वो ज़्यादा होते रहते हैं, बैकवर्डनेस है और इलिटरेसी है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड पॉइंट. हाँ, ये बोल सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए. आप बताइए कुछ. जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना, जैसे ट्राइबल सोसाइटी या आदिवासी लोग है ना, दे आर नॉट डेवलप इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. जो नए टेक्नोलॉजी वो लोग देखते हैं ना, जैसे टेक एग्जांपल, जैसे कोई आदमी मर गया है ना, सम पर्सन हु डाई, तो अगर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट इन हम देखें कि मेडिकल सेक्टर में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर कोई आदमी मरता है तो उसको क्विक लाइफ सेविंग जो मशीन होता है उस पर डाल करके कुछ रिवाइव कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं कुछ घंटों तक. बट नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, दैट इज़ ए कल्चरल एस्पेक्ट, जो जैसे ट्राइबल सोसाइटी या विलेज में भी सम ऑफ द विलेजर्स ऐसा फील करते हैं कि नाउ आफ्टर द डेथ द डेड बॉडी बिकम सेक्रेड, सो वी कैन नॉट प्ले विद दैट डेड बॉडी. उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. वो मर गया, एज इट इज उसको जला दो तुरंत जा कर के. ऐसा नहीं कि उसका यही कारण है ना कि बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स जो जैसे उसका क्या बोलते हैं, डिसेक्शन बॉडी का जो होता है ना, पोस्टमार्टम, उन लोग का प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं. जो एक्सीडेंट होता है तो पुलिस ले जाती है ये करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए. या कुछ ऐसा मर गया है तो भाई कैसे मर गया, पोस्टमार्टम करेगा तब तो पता चलेगा. बट पीपल समटाइम प्रोटेस्ट, द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी प्रोटेस्ट कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं कराना है, बिकॉज हिज और हर कल्चरल एस्पेक्ट रिस्ट्रिक्ट देम कि नहीं हम नहीं करेंगे वैसा. दीज आर द अगेंस्ट ऑफ आवर वैल्यू, कल्चरल वैल्यू. सो एक तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में कि मेडिकल फील्ड बहुत आगे बढ़ गया है, बट कल्चरली जो रेशनली है वो नहीं बढ़ पाए हैं, तो गैप बन गया दोनों के बीच में. दैट इज अ मटेरियलिस्टिक कल्चरल लैग. ये समझ गया कंसेप्ट है? एक बार पूछा था एग्जाम में कल्चरल लैग क्या है. ये है प्रीवियस ईयर, देखिएगा आप लोग. तो बेसिकली गेरेंथन बोले कि मॉडर्निटी इज नथिंग बट ए टर्म बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द मॉडर्निटी. ठीक है, इसी में एक अदर थिंकर्स आते हैं, दैट इज अ वेरी फेमस थिंकर एंथनी गिडेंस. एंथनी गिडेंस ये क्या बोलते हैं कि मॉडर्निटी इज नथिंग बट चेंज इन आइडिया एंड एटीट्यूड. पीपुल आइडिया एंड एटीट्यूड में जो चेंज आया दैट इज अ मॉडर्निटी. चेंज इन
idea and attitude. That also modernity we can say that, है ना. Change in idea and attitude, it means emergence of rational thinking, change in idea and attitude. Other word, what we can say that? Anthony Giddens said, other form we can say that the development of new complex social institution, and development of complex social institution, complex social institutions, है ना. जितने भी जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, रिलीजन हो गए हैं, फैमिली हो गए हैं, देन इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, है ना. जैसे इसका एग्जाम क्या हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं. दैट इज अ मॉडर्निटी. तो दो थिंकर्स को बेसिकली याद रखिएगा. एंथनी गिडेंस तो बार बार आते रहेंगे, तो इनको जनरलाइज मानकर इनको याद ही कर लेना है. एंथनी गिडेंस नेम को बार बार आएंगे, हर फील्ड में आएंगे एंथनी गिडेंस. तो बेसिकली एंथनी गिडेंस सेड कि मॉडर्निटी इज नथिंग बट चेंज इन आइडिया एंड एटीट्यूड, चेंज इन पीपल आइडिया, पीपल परसेप्शन एंड देयर एटीट्यूड ऑल्सो, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटी, दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशन. नाउ कभी कभी एग्जाम में पूछता है जो इमर्जिंग, पॉसिबल इमर्जिंग सोशल इंस्टीट्यूशन. तो कैन एनीवन कैन से दैट द पॉसिबल इमर्जिंग सोशल इंस्टीट्यूशन. जैसे ब्रॉड 5 टाइप सोशल इंस्टीट्यूशन हम लोग डिस्कस किए, है ना. जैसे इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशन था, पॉलिटी था, इकोनॉमी था, रिलीजन था, फैमिली था, एंड एजुकेशन. यही था ना 5 टाइप. देन पॉसिबल, व्हाट कुड बी द पॉसिबल इमर्जिंग सोशल इंस्टीट्यूशन. जो सोशल इंस्टीट्यूशन का डिफिनेशन क्या था, जो परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, है ना. तो थिंक अबाउट कि हाउ दीज इंस्टीट्यूशन डेवलप, एंड इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट इन करेंट सोसाइटी, इन करेंट चेंजिंग वर्ल्ड, कंटेम्परेरी सोसाइटी, इज डेवलप एनी सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक दैट. ऑफ कोर्स मैन, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को. वी कैन से दैट, है ना. जैसे करंट में, जैसे अब सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ रहा है, इवन एजुकेशन सिस्टम भी डिजिटल हो गया. पहले तो ऐसा नहीं था. तो डिजिटलाइजेशन, जैसे बैंकिंग में भी मनी वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, सारे के सारे आ रहे हैं. इवन अब लेक्चर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सब मोबाइल पे ही आ जा रहा है. तो दैट इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वी कैन से दैट. इसी को ब्रॉडर कोई एक नाम दे दिया जाए जो सारी चीज़ को कवर करे, जो डिजिटल से रिलेटेड हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, दैट कैन बी परफॉर्म एज ए रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ड्रास्टिकली गाइड कर रहा है, शेप कर रहा है, सोसाइटी को इटसेल्फ शेप कर रहा है ना. एंड वी कैन से दैट. तो ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोगों की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, आप लोग सोचिए और ऐड कीजिए. So modernity we discuss in terms of 2-3 way, right. One modernity we can say that is a change part. ठीक है, change that is a materialistic and non-materialistic aspect. दूसरा the thinkers we quote, that is a Garen Thermon. And Anthony Giddens. ठीक है. तीसरा है ना, गेरन थर्मन बोले कि मॉडर्निटी इज नथिंग बट इट्स अ डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी. एंथनी गिडेंस बोलते हैं चेंज इन आइडिया एंड एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट. चेंज के एस्पेक्ट में देखिए मटेरियल चेंजेज एंड नॉन मटेरियलिस्टिक चेंजेज. नाउ द अदर फॉर्म ऑफ चेंजेज वी कैन ऑल्सो से दैट इन सोसाइटी वी आर विटनेसिंग, व्हाट वी आर विटनेसिंग इन करेंट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप बोलें कि विजिबली चेंजेस, है ना, जो विजिबली
विजिबली चेंजेज, सबस्टेंशियली चेंजेज, जो होलिस्टिकली पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। चेंज फ्रॉम द पास्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी, आप बताएं चेंज फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू करेंट सोसाइटी। ट्रेडिशनल इट मीन्स पास्ट, ट्रेडिशनल टू करेंट, हाँ करेंट टू प्रजेंट सोसाइटी, प्रजेंट सोसाइटी। जैसे फ्यूडल टू इंडस्ट्रियल, जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जांपल बताए थे जैसे एर्गेरियन सोसाइटी, एर्गेरियन सोसाइटी टू कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, है ना, दैट इज अ फ्रॉम ट्रेडिशनल टू करेंट सोसाइटी, है ना। तो एनीथिंग विच इज विजिबल सबस्टेंशियल, SUBSTAINTIAL, सबस्टेंशियली, सबस्टेंशियली हो गया वही जो होलिस्टिकली, जैसे ट्रेडिशनल टू करंट सोसाइटी, जैसे एर्गेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, रूरल सोसाइटी कल्चर टू अर्बन सोसाइटी, अर्बन कल्चर, एनीथिंग विच इज न्यू क्लास इमर्ज कर रहा है, दैट इज अ मिडिल क्लास, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी। तो बेसिकली इन थ्री फॉर्म्स बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, changes materialistic aspect and non materialistic aspect, then as per thinkers point of view, ज़्यादा thinkers भी नहीं रखना है, कॉमन thinkers याद करके रखना है और वो सभी में अप्लीकेबल करते जाना है, ठीक है। तो बार बार जब रिपीट करेगा तो ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा, ठीक है। then we can say that visible and substantial changes in society, substantial it means the holistically changes, जो complete sweep changes फ्रॉम पास्ट ट्रेडिशनल टू करेंट सोसाइटी। इस पास्ट में जितने भी हो गए स्ट्रक्चर, सोसाइटी के स्ट्रक्चर, जैसे एर्गेरियन फॉर्म ऑफ, फ्यूडल फॉर्म ऑफ, है ना, स्लेव सोसाइटी, नाउ इट टर्न इनटू द चेंज, द न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में भी न्यू क्लास इमर्ज, है ना, नए नए क्लास इमर्ज हो रहे हैं इसमें, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, इलाइट क्लास, अपर क्लास बोलते हैं। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी। तो टर्म समझे, मॉडर्निटी किसको बोलते हैं, टर्म। बेसिकली हियर वी आर डिफाइनिंग द टर्म ऑफ मॉडर्निटी। एक्चुअली मॉडर्निटी है क्या, तो एक ओवरव्यू पिक्चर मिला होगा, कुछ मिला कि नहीं, मॉडर्निटी किसको बोलते हैं। एक बार फिर से सब आदमी बोल दीजिए, उसको हम बोर्ड पे लिखेंगे, उसका मॉडर्निटी टर्म डिफाइन हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस कर देंगे फैक्टर ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी आया कैसे इन यूरोपियन सोसाइटी and the changes due to the modernity we will discuss. अब बताइए तो व्हाट इज एक्चुअली मॉडर्निटी, एक एक पॉइंट बोलिए, दो पॉइंट, एक पॉइंट जो भी आ रहा है, जितना आ रहा है माइंड में, आप बताइए, कुछ भी बताइए। मॉडर्निटी अभी तो इतना डिस्कस किए ना। हाँ, जैसे चेंज, ये हमारा एक तरीके से सारांश हो जाएगा जो पढ़े, चेंज इन मटेरियलिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक फॉर्म, substantial and visible change in society। और बताइए। डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, ये थेरबॉन बोला है ना, गेरेन थेरबॉन। और बताइए। दे ये लिख लिए ना ऊपर वाला लाइन। अच्छा आ गया।
बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले आप? it refers to the and ट्रेडिशनल सोसाइटी, हाँ, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी, ब्रेक ट्रेडिशनल सोसाइटी। और हाँ, एंथनी गिडेंस, चेंज इन आइडिया एंड एटीट्यूड। Change in idea, attitude and development of new social institutions, complex social institutions. development of new complex Social institutions. social institution। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। और बताइए और क्या पॉइंट था, बताइए। So change in social structure. हाँ, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, वी कैन से दैट चेंज इन सोशल STRUCTU, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। जो मिसिंग हो रहा था पॉइंट, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। जैसे अर्बन स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहा है ना, ऑर्गेनाइज्ड अर्बन जो सोसाइटी देखिएगा, सीवेज का भी सिस्टम रहता है, हेल्थ इंफ्रा अलग रहता है, एजुकेशन का अलग पैटर्न रहता है। लेकिन विलेज में देखिए ऑर्गेनाइज और प्लान नहीं रहता है, स्ट्रक्चराइज नहीं रहता है। इट मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो, दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। अदर वी कैन से दैट, जैसे आपने बताया चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन, TRAN, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम एर्गेरियन टू कैपिटलिस्ट, CAPITALIST, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी। और बताइए, आपने बताया फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट, फ्यूडल टू, यही हो गया सेम पॉइंट, कैपिटलिस्ट। अदर पॉइंट, emergence of middle class, we can also say that a middle class emerged। So rise of liberal democracy. हाँ, Rise of liberal democracy. basically these are the idea. Modernity basically not only it's a basically Anthony Giddens said change in idea and attitude. It means new idea, that is a rational idea, that is also we can say that symbol of modernity, rational idea। जैसे डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी अर्ली सोसाइटी था, मोनार्की फॉर्म में, मोनार्की टू डेमोक्रेसी, वी कैन से दैट द मोनार्की टू डेमोक्रेसी, सोसाइटी चेंज हुआ है ना, फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू डेमोक्रेसी। मोनार्की टू डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और फर्दर कोई पॉइंट आ रहे हैं क्या? ठीक है, अब देखिए, अब आपको एग्जाम में लिखने होंगे 150 वर्ड्स में। हाँ, ज्वाइंट टू न्यूक्लियर फैमिली, वो आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत टर्म हम लोग डिफाइन कर लिए बेसिकली मॉडर्निटी से रिलेटेड। अब टर्म अगर पूछ दे कि व्हाट इज मॉडर्निटी, डिफाइन द टर्म मॉडर्निटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो कैसे कीजिएगा इसको, है ना। तो बेसिकली हम लोग को टर्म डिफाइन करना है एक्चुअली व्हाट इज मॉडर्निटी।
जो प्रिसाइसली जो बताए हैं, पहले चेंजेस एस्पेक्ट लिखेंगे, चेंजेस के बाद उसमें थिंकर्स को कोट कीजिएगा, अदर जो चेंजेस हैं देन एग्जांपल पुट कीजिएगा, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, एर्गेरियन टू कैपिटलिस्ट, जो भी एग्जांपल हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई थिंक जो पॉइंट लिखे हैं इसमें से तो हो जाएगा, हमको लगता है 100 वर्ड इसमें एग्जांपल कोट करना है, तो दैट इज़ अ मॉडर्निटी। छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता इसको, छोटा हो गया पर्दा। ये हो जाएगा, मॉडर्निटी टर्म लिख लीजिएगा आप लोग, हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए ना फिर। डिफाइन द टर्म मॉडर्निटी with suitable एग्जाम्पल्स। मॉडर्निटी क्या है, 150 वर्ड्स में 10 मार्क आपका ये रहेगा, ठीक है। मिटा दे इसको। देखिए, नाउ वी नो what is modernity, as our topic was modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. So basically here we define one term, what is modernity, and now we will discuss the factor which responsible to bringing modernity in European society, right? Factors है ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट कंपेल टू ब्रिंग मॉडर्निटी इन यूरोपियन सोसाइटी। जैसे एक का देख लीजिए, इनलाइटमेंट पीरियड, इनलाइटमेंट पहले टर्म लिखिए, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। देन रेनेसा, and scientific revolution, then commercial revolution, then industrial revolution, ठीक है, एंड उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, French Revolution. So these were the combination of factors that happened during the 19th century, or we can say that just after the dark age, in Europe, these series of incidents happen or starts happening, and that basically compel to bringing modernity in European society, right? तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि एक बेसिक पिक्चर समझना होगा यूरोपियन सोसाइटी ड्यूरिंग द डार्क एज पीरियड एंड आफ्टर द डार्क एज पीरियड। तो फेजेज लिख लीजिए सबसे पहले, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। इनलाइटमेंट, रेनेसा एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन बता दें। फॉर बेटर पिक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड द वन, वी कैन से दैट वी शुड टेक अ ग्लिम्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए कि ये पूरा यूरोप है,
ज़्यादा बड़ा हो गया। दिस इज योर यूरोप। यूरोप ड्यूरिंग डार्क एज। डार्क एज, तो ये पूरा आपका यूरोप हो गया। बेसिकली एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं बेसिकली। जैसे ये हो गया आपका रोम ऑफ चर्च, इसको कैथोलिक चर्च बोलते हैं, जिसका सेंटर जो होता था वो आपका रोम में होता था, रोम कैथोलिक। कैथोलिक चर्च है ना, इसका सेंटर रोम में होता था। और यूरोप में बहुत सारे कंट्री हो गए है ना, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, मैनी मोर कंट्री, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। एंड दीज वी आर द कंट्रीज है ना, रूल्ड बाय सब चर्च, सारे कंट्री में सब चर्च थे। एंड सब चर्च वे आर कंट्रोल बाय दिस मेन चर्च, कैथोलिक चर्च है ना, सब चर्च वे आर कंट्रोल बाय दिस मेन चर्च, दैट इज द रोम ऑफ चर्च। इटली से पूरे यूरोपियन सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। इटली से पूरे सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता था। बेसिकली देखिए डार्क एज इसको क्यों बोलते हैं, एक्चुअली जब तक हम पिक्चर समझेंगे नहीं अर्ली यूरोप कैसा था, तब तक मॉडर्निटी हम नहीं समझ पाएंगे कि मॉडर्निटी कैसे यूरोप में आया। तो डार्क एज बेसिकली अ टाइम पीरियड, वी कैन से दैट 1 to 15 सेंचुरी अराउंड, जो टाइम पीरियड है इन यूरोप बेसिकली नोन एज द डार्क एज, टाइम पीरियड 1 to 15 सेंचुरी के आसपास। एंड अब यहाँ पे चलते हैं कि इसको डार्क एज बोलते क्यों हैं। नाउ द होल यूरोपियन सोसाइटी वेयर डायरेक्टली कंट्रोल अंडर द अथॉरिटी ऑफ रोम ऑफ चर्च। होल यूरोपियन सोसाइटी जितने भी, जैसे स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, अगेन पुर्तगाल हो गया, पुर्तगीज हो गए, फ्रांस हो गए, स्वीडन हो गए, जर्मनी, जितने भी यूरोप में कंट्री है, जितने भी कंट्री हैं, सारे के सारे देश, ऑल द कंट्री वे आर हैंडल बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोम ऑफ चर्च विद द हेल्प ऑफ दी सब चर्च। सारे सब चर्च के हेल्प से पूरे के पूरे यूरोपियन सोसाइटी को रूल कर रहे थे। नाउ द यूरोपियन जो मेंबर्स थे, जो यूरोपियन सोसाइटी के जो लोग थे, वाई वी कॉल डार्क एज, बिकॉज देयर थिंकिंग हैज़ नॉट डेवलप सो मच। उनका रेशनल थिंकिंग डेवलप नहीं हुआ था। दे डू नॉट थिंक रेशनली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इवन दे डू नॉट नो व्हाई दीज द चर्च अथॉरिटी रूलिंग अस and why these church authority imposing a kind of taxes on us, right, rather to just मांगने आते थे वो दे देते थे। तो basically we can say that there were many reasons that we can define for a dark age. One is that is not a development of rational thinking, no rational thinking. People do not have rational thinking. Other we can say that these earliest European people believe in speculation and magical kind of thing. They believe in magical kind of thing. Other उनका जो एक्सप्लानेशन था, एक्सप्लानेशन अबाउट एनी फेनोमेना, दैट वाज स्पेकुलेटिव बेस्ड, है ना, स्पेकुलेशन बेस्ड थॉट, दैट इज वही था कि रेशनल नहीं था। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए ना, जैसे ये मान लीजिए कि कहीं हैवी रेनफॉल हो रहा है, कहीं हैवी रेनफॉल हो रहा है,
तो उस समय लोगों का रेशनल टेम्परामेंट इतना डेवलप नहीं हुआ था कि बता सके कि क्यों हो रहा है बे रेनफॉल। क्योंकि अभी तो बता सकते हैं ना, अभी मॉडर्नाइज एंड मॉडर्न सोसाइटी में कि नहीं क्लाउड यहाँ पे इस प्लेस पे इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, इस कारण से ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन अर्लियर पीपुल डू नॉट हैव रेशनल थिंकिंग, सो समटाइम दे फील दैट they start speculating the irrelevant kind of meaning, अपने आप को मीनिंग बनाने लगते थे कि एक्चुअली हो सकता है कि भगवान हमसे दुखी हो गए हो, स्पेकुलेट करते थे। दे बेसिकली थिंक इन अदर वर्ल्डली काइंड ऑफ थिंग, है ना। हो सकता है कि भगवान सम काइंड ऑफ मैसेज देना चाह रहे हैं, गॉड्स कुछ ऐसा सुपर नेचुरल कोई फोर्सेस है इस नेचर में जो हमको कोई मैसेज देना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। तो बेसिकली they do not have a rational thinking, they believe in magical kind of things. We can say that their thought were based on speculation also, है ना। तो ये सब रीजन थे। even they do not we can say that do not know why the church authorities are ruling us, right? Even they do not know why the church authority is, why the church authorities are ruling us AUTHORITI, वर्ड सही था ना? ये लिख लिया पूरा, एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। Why the church authority या authorities are ruling us, because they do not have explanation, right? They do not have rational thinking. So even they do not know why these Catholic churchmen ruling us, a kind of taxes imposing us. So that was the basic picture before we can say that modernity. European peoples basically they believe in magical kind of thing. Their thought was speculative based, and not rational. They believe in otherworldly thing, we can say that. They believe in, लिख लीजिए इसको, otherworldly thing. They believe in other worldly thing. What is meant by other worldly thing? It means some supernatural power. Other worldly thing means some supernatural power. So there is some supernatural power that ruling us, है ना. That is the reason we also call that is a dark age, right. देखिए अब आपका आते हैं फैक्टर पे, जस्ट आफ्टर द डार्क एज। एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बना करके वहाँ पे स्टॉप करेंगे, एंड देन उसके बाद कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स को वन बाय वन, ठीक है। जैसे अब बेसिकली देखिए आफ्टर द डार्क एज, आफ्टर द डार्क एज, आफ्टर द डार्क एज यूरोप कैसा था, क्या हाल था डार्क एज के बाद, ठीक है। आफ्टर द डार्क एज इट मीन्स 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उससे आगे क्या सीन था, कैसा था यूरोप, उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे डार्क एज हो गया है आपका, डार्क एज, दिस वाज द पीरियड 1 to 15th century, this was the period of dark age, and after the dark age
after the Dark Age, we can say that in Europe witnessed a series of incidents in terms of enlightenment, है ना, जो फैक्टर्स हैं उसको सारे के सारे नोट कर लीजिए. देन रेनेसा एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, Renaissance and scientific revolution, then commercial revolution, then industrial revolution, then French revolution. ठीक है. Just after the Dark Age, series of incident, SERIES, series of incident happened in European society in terms of enlightenment, Renaissance and scientific revolution, commercial revolution, industrial revolution and French revolution, right. And due to these factors, these incident, right, a series of changes also occurred in European society, है ना. These were the factor FACTORS, these were the factors, and due to these factors a sudden series of changes also took place in European society, जिसको हम लोग modernity बोलते हैं. तो नया changes आया. Sudden took place of what we can say that changes, sudden took place of changes, ठीक है. और इसी जो चेंजेज आया, जो सडन जो चेंजेज आया, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडर्निटी. यहाँ तक पिक्चर क्लियर है. हाँ, डार्क एज पिक्चर ले जाइए पीछे, एकदम आँख बंद कीजिए, पिक्चर पीछे ले जाइए. डार्क एज उसको बोलते क्यों हैं. देन डार्क एज सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैपन in form of enlightenment, Renaissance, scientific revolution, commercial revolution, industrial revolution and French revolution that we are going to discuss in detail in upcoming session. Then these were the factor, और इस सारे factor के कारण जो changes हैं, जो sudden जो changes took place in European society, particularly in Europe. यूरोप की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. हमारा हेडिंग है यूरोप, ठीक है. तो यूरोप में जो चेंजेज आया, that brings modernity. So firstly, in a definition we can say that modernity basically first time emerged in Europe. Modernity emerged in Europe as an explanation of how the European society or Western society were transforming. ये इंट्रोडक्टरी लाइन हम लोग बना सकते हैं. ये modernity emerged in Europe basically during the 19th century, from the 19th century, as an explanation of how the Western society or European society were transforming or changing, है ना. 19th century को हटा दीजिए, 19th century टाइमलाइन हटा दीजिए. बेसिकली ऐसे लिखिए, modernity we can say that as an explanation of European society, modernity emerged as an explanation of European society, how the European society were changing or transforming. हो गया सिंपल लाइन. Modernity emerged as an explanation of how the European society were transforming. That is a modernity. तो यहाँ modernity आ गया, ठीक है. That is a modernity. एंड मॉडर्निटी के कारण, मॉडर्निटी कुछ नहीं है बेसिकली, जो चेंजेज आया, जो कंप्लीट, जो पुराने स्ट्रक्चर थे, पुराने थिंग्स थे, जो नए हो गए, दैट इज ए मॉडर्निटी. और फर्दर मॉडर्निटी और उसी को चेंजेस बोलते हैं. जो चेंजेस के कारण प्रॉब्लम्स नए नए क्रिएट्स हुए, है ना. ऑल्सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, इमर्ज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. इस ग्राफ को इधर मिटा दें हम, हाँ.
इसी ग्राफ में नीचे ऐड करना है, अभी जो एरो का साइन दे करके इसी में ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मॉडर्निटी है, ना, इसी में नीचे ऐड कीजिएगा, वहाँ से अलग से नहीं, आप लोग एक ही में बनाइए इसको, और अपने कन्वीनियंस के अनुसार जैसा आप लोगों का पिक्चर दिमाग में बने वैसे बना लीजिए। मॉडर्निटी के फर्दर, मॉडर्निटी के कारण जो चेंजेज आए उसके कारण जो फर्दर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, एंड जो प्रॉब्लम्स, नए नए चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे उस समय जो यूरोपियन थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, है ना, बाय सिटिंग इनटू द वन कॉर्नर ऑफ द यूरोप, very carefully watching all the changes and the problems that were occurring, particularly during the 19th century, है ना, in European society. तो यहाँ पे अब thinkers भी आ जाते हैं, that one by one we will discuss thinkers also, but basically for graph लिखिए सिर्फ thinkers. Thinkers very carefully observing these problems and changes, है ना, problems and changes, and in terms of that thinkers start studying, starts studying, है ना, observing, studying और observing, है ना. Thinkers, not only they were the sociologists, but they were philosopher also, many more, they were philosopher also. तो वो सारे के सारे जो चेंजेज आ रहे थे उस समय यूरोपियन सोसाइटी में, वो सोचने लगे कि भाई चेंजेस क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम्स जो हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों इमर्ज हो रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ दैट दे बेसिकली द फोरफादर ऑफ सोशोलॉजी ट्राई टू डेवलप सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, है ना. जो जितने भी फोर फादर्स हो गए, फोर फादर्स ऑफ सोशोलॉजी, जैसे अगस्ट कॉम्ट known as the father of sociology also. Why we call Auguste Comte as a father of sociology? Huh? Name sociology. हाँ. First time gave the scientific way of studying Sociology. society. That is good. Basically, Auguste Comte for the first time he suggests that the way we study the natural science, in same way the same method we should apply in the study of sociology also. That's why he is famous. And other, Auguste Comte also known as the modern father of sociology, because he was the first person who gave sociology its name also. कि जो सोसाइटी से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप एंड ह्यूमन बिहेवियर्स रिलेटेड जो भी स्टफ हम पढ़ेंगे, एंड उसको हम सोशोलॉजी बोलेंगे. दैट्स वाई वी कॉल अ मॉडर्न फादर ऑफ सोशोलॉजी. ऑल्दो द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी इज मेनी मोर. अगस्ट कॉम्ट इटसेल्फ, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, है ना. मैक्स वेबर लिख लीजिए, इसी में नीचे लिखिए डर्कहाइम, इमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स. So these were the forefather of sociology, basically we can say that. These were the forefather of sociology. Basically they start observing, studying the changes, problems which were occurring due to the modernity, और जो changes आया उसके कारण यूरोपियन सोसाइटी, and in terms of that the new subject emerged. They try to make a sociology as a discipline. In terms of that, after a study they try to make a one discipline, है ना, discipline
डिसिप्लिन, और वही डिसिप्लिन जो है सोशोलॉजी है ना। एंड वहाँ से वी कैन से दैट दस सोशोलॉजी इमर्ज, 10 सोशोलॉजी मर्ज। ओवरव्यू ये ग्राफ था, और इस ग्राफ को वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली है क्या, वी जस्ट ओनली डिस्कस वन पार्ट, दैट इज व्हाट वाज द डार्क एज, एंड आफ्टर द डार्क एज इट मीन्स जो फैक्टर्स हैं दैट ब्रिंग्स मॉडर्निटी और दैट कंपेल टू ब्रिंगिंग मॉडर्निटी इनटू द यूरोपियन सोसाइटी, दिस वेयर जैसे एनलाइटमेंट, रेनेसांस, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, देन कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, एंड उसके अलावा जो उस समय जो इंटेलेक्चुअल थे, उस समय जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो थे, दैट दोज वेयर द थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल जो फिलोसफर थे, है ना, उनके आइडिया, दैट आइडिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस दैट वी विल स्टडी इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसी में हम पढ़ लेंगे। तो जितने भी यूरोपियन फिलोसफर थे, उनके आइडिया जो है फर्दर इग्नाइट किया जो फ्रेंच सोसाइटी को, नॉट ओनली फ्रेंच सोसाइटी बट यूरोपियन सोसाइटी, होल यूरोपियन सोसाइटी। एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे जितने भी सीरीज ऑफ इंसिडेंट है उसके कारण कौन कौन से चेंजेज हैं, डिटेल में जो चेंजेज पार्ट को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज आवर सोशोलॉजिकल टॉपिक। जो चेंजेज आए, जो चेंजेस ड्यू टू द एनलाइटमेंट, चेंजेस ड्यू टू द साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड रेनेसां, चेंजेस ड्यू टू द वही जो रिवोल्यूशन है आपका, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, सारे के सारे क्या क्या चेंजेज हैं। एंड देन अगेन आई ट्राई टू एसोसिएट विद दिस ग्राफ, एंड देन वहाँ से आपको होलसेल एक पिक्चर मिल जाएगा। कल हम बेसिक एनालिसिस करेंगे हम लोग। आई थिंक कितना देर हो गया आज? सो वी आर वाइंडिंग अप सेशन हियर, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, थैंक यू। अरे बंद कर दीजिए।